میرے کردار کی خرابی اور میری نیت میں کھوٹ کب محسوس ہوا آپ کو؟ میری نگاہ جب بھی آپ کی جانب اٹھی عزت اور احترام کے پردوں کے ساتھ اٹھی۔ بہت مواقع میسر آئے مجھے، اگر میری نیت بری ہوتی تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ اس کی سوچ کے عامیانہ پن نے عمر کو بری طرح پریشان کر ڈالا تھا۔ ثاقب کے بعد میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ثاقب مر کر وہ تمہیں نہیں مل سکا، اگر زندہ رہتا تو بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے امریکہ میں شادی کی ہوئی تھی اور اپنی انگریز بیوی کی خواہش پر ہی وہ تمہیں بیوی کے روپ میں ملازمہ بنا کر لے جا رہا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ شادی والے دن بھی اس نے ڈرنک کیا ہوا تھا اور وہ کار ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوا تھا؟ شدت جذبات میں وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کی باتوں کے جواب میں رابیکا کے چہرے پر پھیلتی یاسیت اس بات کی امین تھی کہ وہ ان سب باتوں سے آگاہ ہے، اور یہ سچ تھا کہ ثاقب کے مرنے کے 1 ماہ بعد ساری حقیقت سے وہ رفتہ رفتہ واقف ہو گئی تھی، جو عاطف کے طفیل اس تک پہنچی تھی۔ یہ میرا مقدر ہے، مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے دوبارہ ڈسٹرب کرنے مت آئیے گا، میں اپنے حال میں خوش ہوں، مجھے اب کسی کی رفاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ میرے دل کے دروازے، میرے گھر کے دروازے وا رہیں گے، مجھے تمہاری آمد کا ہر گھڑی انتظار رہے گا۔ جب حال سے گھبرا جاؤ تو مجھے پکار لینا، میں آ جاؤں گا، وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ سمرا اور عاطف 1 ہفتے کے لیے ٹھہرنے آئے تھے۔ گھر میں گہما گہمی پھیل گئی تھی۔ عمر کو یہاں سے شفٹ ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ بہت کم آیا تھا۔ اس کی آمد پر رابیکا ایک بار بھی اس کے سامنے نہ آئی تھی۔ وہ شام کو بہت سارے پھلوں سمیت آ دھمکا تھا۔ عاقب بتا رہا تھا کہ آپ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ چائے سے فارغ ہو کر فرحہ بیگم نے عمر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کے علاوہ سمرا اور نمرا بھی وہاں موجود تھیں۔ عاقب کپڑے چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جی 1 ماہ لگے گا آنٹی۔ اچھا ہے، خوب ترقی کرو، دنیا میں نام روشن ہو۔ بیٹا مما پاپا کو کب بھیجو گے یہاں؟ وہ دراصل نمرا کے لیے اچھے گھرانوں سے کافی پروپوزلز آئے ہوئے ہیں۔ وہ سیدھا مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولی۔ مما پاپا کا آنا مشکل ہے، آپ میرے پیرنٹس سے پوچھ کر نمرا کا پروپوزل منتخب کریں گی؟ واو! اس نے نمرا کو دیکھ کر پوچھا، جو گردن جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے عمر، آپ کے گھر والے ہی تو آپ کا پروپوزل لائیں گے، سمرا حیرانگی سے بولی۔ فرحہ بیگم بھی سراسیما تھی۔ یہ میں نے کب کہا کہ میں نمرا کو پروپوز کروں گا؟ عمر کا انداز سادہ اور تعجب خیز تھا، مگر ان کو اپنی سماعتوں میں دھماکے سے گونجتے محسوس ہوئے۔ نمرا مسکرانا بھول گئی۔ دیوار کے پیچھے کپڑے پھیلاتی رابیکا بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ وہاں تک آواز صاف جا رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہو نا بیٹا؟ مارے گھبراہٹ کے وہ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ کیا میں ایسا چیپ مذاق کر سکتا ہوں آپ جیسی معزز ہستی کے ساتھ؟ اچھا مذاق نہیں تو یہ کیا ہے؟ اتنے عرصے تک میری بچی کو ساتھ لیے گھومتے رہے، تحفے دیتے رہے، گھر میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب کہتے ہو کہ مذاق نہیں ہے؟ اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے؟ اتنے عرصے تک تم ہماری عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، اب کہتے ہو ایسی کوئی بات نہیں؟ غم و غصے سے ان کا برا حال تھا۔ سمرا بھی اسے گھور رہی تھی۔ نمرا چپ بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نمرا کو کبھی میں نے ان کی مرضی کے بغیر باہر لے جانے کا نہیں کہا، نہ میں کبھی ان کو ان کی مرضی کے بغیر باہر لے کر گیا ہوں، نہ کبھی ہوٹلنگ کی نہ آؤٹنگ کی۔ نمرا اصرار کرتی تھی کہ انہیں فلاں جگہ ڈراپ کر دو اور فلاں جگہ سے پک کر لو، کیونکہ میں عاقب کی مصروفیت جانتا تھا، وہ نمرا کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے عاقب کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اس گھر کا ایک فرد سمجھ کر، نمرا کو اپنی بہن سمجھ کر۔ ارے بڑے آئے بہن سمجھنے والے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں رہ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی، میری بیٹی کو رسوا کرنے کی؟ احسان فراموش آستین کے سانپ، کل تک تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، جس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے مجھے۔ 2 ماہ کی سخاوت اور ریاضت پر مٹی پڑتے دیکھ کر فرحہ بیگم اپنی اوقات پر آ گئی تھی۔ عاطف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمر کی نیت درست نہیں ہے، سمرا نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ میں چلتا ہوں آنٹی، ابھی آپ غصے میں ہیں،
बाद में आपको बात समझ आएगी मेरी। इतना कुछ सुनने के बावजूद उसके चेहरे पर गुस्से की एक शिकन तक ना उभरी थी। वो उसी तरह पुरसकून था। उसे मालूम था बहुत जल्द उसे ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। वो दिन आज आ गया था। हाँ हाँ, दफ़ा हो, आइंदा कभी अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना हमें। बदलिहाजी और बदमिजाजी के उरूज पर थी वो, गुस्से से सुर्ख हो रही थी। स्टॉप इट ममा, बस करें, बहुत बोल गई हैं आप। उमर, तुम कहीं नहीं जाओगे। आकिब वहां आकर माँ से मुखातिब होने के बाद उमर का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है इसने कितना बड़ा धोखा दिया है, हमारे एतमाद और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। ख्वाहिशों के शीश महल की बिखरी किरचियों में, आरजुओं के लहूलुहान वजूद में मुक़ैद फरहा बेगम उस वक्त बद अखलाकी और बेमुरवती की हर हद तोड़ रही थी। फ़ायदा उमर ने नहीं, हम उमर से उठाते रहे हैं। आकिब प्लीज़ छोड़ो इन बातों को, मुझे जाने दो, मैं फिर आऊँगा। उमर ने निगाहों से मना करते हुए कहा, मगर आकिब ने ज़बरदस्ती उसे बिठा दिया। नहीं उमर, अब इस कहानी का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। आकिब, तुम नहीं जानते, मैंने पहले ही ममा से कहा था कि ये राबिका की खातिर आता है, और आज भी कह रही हूँ। जिस तरह इसने आते ही उस मनहूस औरत पर तवज्जो दी, उसे हमारे दरमियान ला बिठाया, असल में बात ये थी, ये उसी की खातिर आता था। समरा भी अंगारे चबाने लगी। ठीक कह रही हैं आपी, उमर को मैंने इसी नेक मकसद के लिए बुलाया था। कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो तीनों बैक वक्त चौंकी थी। दीवार के पीछे राबिका मुतवहश से बैठती चली गई। अब आप मेरी बातें बिल्कुल खामोशी से सुनेंगी। आपके जुल्मों सितम जब हद से बढ़ गए, फिर आपने बिला वजह भाभी पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि वो मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ख़राब करना चाहती हैं। वजह ये थी कि मैं आपकी ज़्यादतियों पर उनकी हिमायत कर दिया करता था। ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाकर आपने उनको ही नहीं, मुझे भी अपनी नज़रों से गिरा दिया। बहुत सोच समझकर मैंने उमर से तमाम सूरत हाल डिस्कस की, और उमर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो ऐसी ही लड़की की तलाश में था जो आला अखलाक और बेहतरीन किरदार की मालिक हो, क्योंकि उसकी मम्मी एक बेहद सादा और पुरखुलूस तबीयत की मालिक हैं। उनकी हम मिजाज लड़की बहू बन जाएगी तो घर जन्नत बन जाएगा। मैंने कहा, पहले कुछ दिन यहाँ आकर रहो, इनको देखो परखो, फिर बात आगे बढ़ाओ। और इस तरह बात आगे बढ़ती चली गई। वैसे भी उमर राबिका को बिना देखे पसंद कर चुका था, और अगले हफ्ते अंकल आंटी आ रहे हैं प्रपोज़ल लेकर, और साथ ही मैं इनकी शादी कर दूंगा। आकिब धमाके पर धमाका कर रहा था। सबसे पहले तो तूने अपने ही घर में नकब लगाई। तुझे उस गैर की इतनी फ़िक्र और अपनी बहन की बिल्कुल ही फ़िक्र नहीं है। उनकी आवाज़ में शिकस्तगी थी। मेरी बहन अपनी फ़िक्र खुद करने वाली है, उसने तंजिया कहते और निमरा को मलामत से देखते हुए कहा, जिसने घबरा कर सर झुका लिया। इस दौर की कुछ बेराहरू लड़कियों की तरह इसने भी कई दोस्तियां पाली हुई थी, जिनमें से अकरम नामी लड़के के साथ ये इस हद तक जा चुकी थी कि अगर उमर ना आ जाता तो ये कोर्ट मैरिज कर चुकी होती। उसके लहजे में तपिश थी। बकवास मत करो बेगैरत, बहन पर इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? बेगैरत तो हूँ जो इतना जानने के बावजूद इसे जिंदा छोड़ दिया, इस खौफ से कि जवान बहन की ऐसी मौत भी रुसवाई बन जाती है। लोगों को क्या बताऊंगा कि क्यों मारा अपनी बहन को? लोग ऐसी बातें बिना बताए जान जाते हैं। निमरा रोने लगी थी। उमर को इस दौरान बैठना बुरा लग रहा था, मगर आकिब के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अकरम आया था मेरे पास, उसी ने ये सब बता दिया। अच्छा लड़का है वो, सब जानने के बावजूद अभी भी इससे शादी करने को तैयार है। मैंने कह दिया है कि वो अपने घर वालों को भेजे। मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। ये सब उस मनहूस की वजह से है, और तुम समझ रहे हो कि मैं उसकी शादी उमर से होने दूंगी, उसे ऐश करने दूंगी? मेरे बेटे को मार कर वो फजूल बात मत करें मम्मा। भाई को इसी तरह जाना था। किसने कहा उनसे कि ड्रिंक करके ड्राइविंग करें? फिर वो राबिका को कौन सा सुख और खुशियां देने वाले थे? वो बीवी के रूप में एक महकूम, एक मुलाजमा लेकर जाना चाहते थे जो उनके साथियों की और उनकी खिदमत करे। आकिब, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने भाई के मुतालिक ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करते हुए? क्या हो गया है तुम्हें? किसने कान भरे हैं तुम्हारे? निमरा अंदर चली गई थी। समरा गुस्से से चीख कर बोली थी, रहने दीजिए आपी, सब जानबूझकर अनजान बनना अच्छा नहीं लगता।
साकिब भाई की अय्याशियों और शाह खर्चियों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी होती अगर उमर बढ़कर माली सहारा ना देता। मैंने कहा था इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, उमर सख्ती से बोला। कब तक छुपाऊंगा? तुम्हारे एहसानों का बोझ इतना बढ़ गया है कि मैं प्लीज़ यार, दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता, उसने खफगी से कहा था। ममा, आप लोगों को जो दर्स देती हैं कभी खलूसे नीयत से, उन पर खुद भी अमल पैरा होती तो ये सब कुछ ना होता जो आपकी नाक के नीचे होता रहा है और आप बेखबर रहीं। भाभी के सर पर आप प्यार से हाथ रख देती तो वो उसी तरह आपकी खिदमत करती, मगर आपके अमाल नामे में नेकियों का और उन दुआओं का इजाफा हो जाता जो उनके दिल से निकलती, और लोग आपकी इज्जत इसी तरह से करते जैसे आपके सामने करते हैं, वरना पीछे आपको बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि काम कोई भी हो पहले हमें मिसाल बनना पड़ता है, जब जाकर लोग अमल पैरा होते हैं। आकिब का एक एक लफ्ज़ उनके ज़मीर पर नश्तर बनकर लग रहा था। अभी कुछ देर कबल बड़े बड़े तकब्बुराना जुमले बोलने वाली फरहा बेगम गुमसुम सी हो गई थी। आकिब ने आईने में उनका अक्स दिखाकर उन्हें शर्मसार ही कर डाला था। समरा आपी, आप यही कोशिश करती हैं ना कि किसी तरह भाभी को यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि आप अपने शोहर की तरफ से बेफिक्र हो सकें। आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो उनको वरगलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उस दिन आपने भी सुनी थी उनकी बातें, फिर आप उनको समझाने की बजाय भाभी की ही दुश्मन बन रही। जब नीयतों में खलूस की चाशनी, इसार और कुर्बानी के जज्बे शामिल हो जाए ना, तो इंसान इंसानियत की मेराज पा लेता है। ऐसा करने के लिए सिर्फ अपना मुहासबा और ज़मीर की सदा पर लब्बैक कहने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ठोकर खाकर संभलते हैं और कुछ लोग गिरकर। फरहा बेगम का ताल्लुक भी गिरकर संभलने वालों में से था। वो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने के बाद ये समझ पाई कि दूसरों की इस्लाह से कब अपनी इस्लाह ज़रूरी है। असल तबलीग वो है कि लोग आपसे मुतासिर होकर मजहबी अतवार को अपनाएं। आप किसी को कहने की नहीं, बनने की तरगीब दें। नेकी की खुशबू देर से फैलती है मगर पायदार होती है। वो जान गई थी। अपने मालिक हकीकी से माफ़ी मांगने के बाद वो राबिका से भी माफ़ी मांग चुकी थी। राबिका जैसी लड़की उन्हें क्यों करना माफ़ करती? वो उन्हें माफ़ कर चुकी थी। अब उसकी निगाह में निमरा के बराबर थी, जो आजकल अपने जहेज की तैयारियों में मगन थी। फरहा बेगम अकरम के घर वालों को शादी की डेट दे चुकी थी। राबिका के मना करने पर उमर ने अपने पेरेंट्स को नहीं बुलवाया था। राबी उमर अच्छा लड़का है, उसमें वो तमाम खूबियां हैं जो एक हस्बैंड में होनी चाहिए। कल तक मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो निमरा का नसीब हो, मगर आज मेरी आरजू है कि वो तुम्हारा मुकद्दर बने। तुम्हारा इनकार बेमायनी है। मैं चाहती हूँ कि निमरा और तुम्हारे फ़र्ज से एक साथ सुबह दोष होकर हज पर जाऊँ। वो मुलायमत और प्यार से उससे मुखातिब हुई थी। आंटी, मैं नहीं चाहती कल उमर को लोग जताएं कि उन्होंने एक बेवा से शादी की है। उनको लड़कियों की कमी नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। लोगों की परवाह मत करो, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। बेवा हुई तो क्या हुआ, तुम कुंवारी लड़की हो। वो काफ़ी देर तक उसे समझाती रही, फिर उसके खौफ के मुतालिक उमर को भी बता दिया था। वो उनकी परमिशन से उसके कमरे में आ गया और बिला तमहीद शुरू हो गया। आपको लोगों का इतना ख्याल है और मेरा बिल्कुल नहीं। अगर आपके बच्चे होते तो भी मैं आपसे शादी करता, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। हालांकि उसूलन तो मुझे आपसे खफा होना चाहिए था। उस दिन बहुत बुरा सलूक किया था आपने मेरे साथ। उसके अंदाज में यकदम नाराज़गी दोहराई थी। किस दिन की बात कर रहे हैं आप? उसने चौंक कर कहा। जिस दिन मैंने शिफ्ट होने पर पार्टी दी थी और आपको लेने आया था तो आपने कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए थे मुझ पर कि मैं इस घर की बेटी और बहू दोनों पर नज़रें डाल रहा हूँ। उसके अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। धुली धुली शफाफ मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया था। अब भी मुस्कुराकर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? उसने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसके मुकाबिल आ गया। जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। राबी, प्लीज़ अब इनकार मत करना। मैंने तुम्हें चाह है, बेलौस तमन्ना की है। मोहब्बत के फसाने ज़ुबान से नहीं, आँखों से कहे जाते हैं, दिल से महसूस किए जाते हैं। उसके भारी दिलकश लहजे में चाहतों की महक दोहराई थी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो क़ब्ल अज़ वक्त जज्बों को आश्कार करके मोहब्बत की लताफ़तों से महरूम हो जाते हैं। आपके घर वाले, उनका ख्वाब मुझ जैसी बहू लाने का नहीं होगा।
آپ ان کے इकलौते वारिस हैं। उसके लहजे में वही महरूमी उमड़ आई जिसने उसको बेकल किया हुआ था। तुम सब वहम, सब खदशे, सब खौफ जहन से निकाल दो। मैंने उन सब को बता दिया था, कोई बात नहीं छुपाई, और वो खुश हैं। बल्कि मम्मी का तो इसरार है कि वो तुमसे खुद बात करना चाहती हैं। क्यों? ताकि तुम्हें समझा सकें कि वो तुम्हारी जैसी बहू की ख्वाहिशमंद है, जो उनका घर संभाल सके, अच्छे अच्छे खाने खिला सके और उनके फूहड़, बदसलीका और लापरवाह बेटे को भी संभाल सके। वो हंसते हुए बोला तो राबी का सर झुका गई। मैं मम्मी से बात करवाता हूँ। उसे खामोश देखकर वो संजीदगी से सेल फोन जेब से निकालता हुआ बोला, नहीं, मैं क्या बात करूँगी। वो घबरा गई। तसल्ली कर लो अपनी। नहीं, मेरी तसल्ली हो गई, शर्मगी लहजे में उसने कहा। क्या? क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। वो ऐसे मुसर्रत से चीख उठा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। आप अपने पेरेंट्स को बुलवा लें। वो कहकर रुकी नहीं, कमरे से बाहर निकल गई और उमर जिब्रान का जिंदगी से भरपूर कहकहा कमरे में गूंज उठा।